اور خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی بے حد اہم خبر کے ساتھ۔ جموں کشمیر زمین گھپلا معاملے میں ایک اور اہم انکشاف ہوا ہے۔ جموں میں پی ڈی پی کا دفتر بھی جنگلات کی زمین پر تعمیر کیا گیا۔ 3 کنال زمین پر غیر قانونی طریقے سے قبضہ کیا گیا۔ متنازع لیڈر راشد خان نے دفتر کی پہلی منزل پر اپنا بسیرا بنایا۔ مفتی محمد سعید کی قیادت والی حکومت کے دور میں زمین پر قبضہ ہوا، یہاں تک کہ روشنی ایکٹ کا بھی سہارا نہیں لیا گیا۔ مولانا کلب صادق کا جسد خاکی لکھنؤ کے امام باڑہ غفران مآب پہنچ چکا ہے، جہاں سوگواروں کی کثیر تعداد پرنم آنکھوں سے موجود ہے۔ کچھ دیر میں تدفین کا عمل شروع ہو جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ لکھنؤ کے یونٹی کالج میں مولانا کلب صادق کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ ادھر عالمی شہرت یافتہ عالم دین مولانا کلب صادق کے انتقال پر انجمن امامیہ بنگلورو نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ انجمن کے صدر میر علی رضا نجفی نے کہا کہ مولانا کا انتقال عالم اسلام اور بالخصوص ہندوستان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کلب صادق صاحب کا انتقال جو ہوا، ہمارے لیے بالخصوص مسلمانان ہندوستان پرٹیکولرلی اہل تشیع کے لیے بہت بڑا لاس ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے پاس جو پڑھے لکھے علماء میں ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، جو ان کے نظریات یہ ہیں کہ پورے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، پورے مذاہب کو لے کر چلنے کی ان کے خیالات تھے۔ وہ جو بنگلور آئے تھے، بنگلور میں ایک تقریر میں یہ کہا تھا، اگر کوئی مسلمان احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، راستے میں کوئی غیر مسلمان پانی میں ڈوب رہا ہے، یہاں تک کہ کوئی ایک ہندو بھائی بھی ڈوبتا ڈوبتا یہ کہہ رہا ہے کہ اے رام مجھے بچائیے، اے رام مجھے بچائیے، تو وہ مسلمان جو حرام بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ لکھنؤ سے موجود ہیں ہمارے ساتھی طارق قمر۔ طارق، بے حد افسوسناک خبر جب سے یہ آئی ہے، پوری دنیا سے لوگ اظہار افسوس کر رہے ہیں اور خاص طور پر لکھنؤ کی ہر آنکھ نم ہے۔ کیا کچھ اس وقت وہاں پر نظارہ؟ دیکھیے ہینا، میں بتا دوں کہ ہم نے تمام ناظرین کو یونٹی کالج کا منظر بھی دکھایا تھا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ مولانا کلب صادق کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی۔ ان کی شخصیت کے جتنے پہلو تھے وہ تمام بڑے روشن، بڑے تابناک تھے۔ مولانا نے ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے، مفسر کی حیثیت سے، مبلغ کی حیثیت سے، ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے، ایک دینی رہنما کی حیثیت سے جو خدمات انجام دی ہیں، ان کا احاطہ چند جملوں میں، چند منٹوں میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یونٹی کالج میں بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور اس وقت میں امام بارگاہ غفران مآب میں موجود ہوں، جہاں پر مولانا کی تکفین و تجہیز کے ساتھ اب تدفین کا عمل مکمل ہونا ہے۔ یہاں پر بھی ہزاروں لوگ موجود ہیں، اور اہم بات یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ ساتھ تمام طبقوں، تمام مسالک، تمام نظریات، تمام مذاہب کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام کی ایک ایسی شخصیت جس نے تمام محاذوں پر بڑی نمایاں خدمات انجام دیں، ایک ایسی شخصیت جس نے نہ صرف تعلیم کے میدان میں بلکہ ہر میدان میں اپنے نقش قدم چھوڑے، اپنی شناخت قائم کی۔ اس وقت بھی بہت اہم لوگ موجود ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ظفر یاب جیلانی صاحب شرکت کے لیے آئے ہیں۔ درخواست کروں گا محترم عزیز اس وقت کہ ایک بہت اہم شخصیت کی رخصتی پر، رحلت پر کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ بڑا وقت گزرا ہے آپ کا ان کے ساتھ، مختلف تحریکوں سے وابستہ رہے ہیں، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں ہر شخص کے لیے یہ دن مقرر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا کارآمد آدمی جب ان سے جدا ہوتا ہے تو نہ صرف انفرادی افسوس ہوتا ہے بلکہ پوری ملت کو افسوس ہوتا ہے۔ کلب صادق صاحب ایک ایسے اہم شخصیت تھے کہ جن کی جدائی پر ان کی جو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نقصان ہمیں محسوس ہو رہا ہے انفرادی طور پر، اس کے علاوہ لکھنؤ کے لوگوں کو، پھر اس ملک کے لوگوں کو، کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو صرف عالم دین نہیں تھے، جیسے آپ نے خود ذکر کیا، وہ ایک ریفارمر تھے، وہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے، وہ خدمت خلق کرنے والے ایک ایسے انسان تھے
जो हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते थे कि चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे मज़हब का मैदान हो, चाहे इंसानी खिदमत का मैदान हो, किसी भी मैदान में वो इस्लाम के बताए हुए तरीक़े पर अमल करके लोगों की खिदमत कर सके। यही वजह है कि वो उन उलमा में, चंद उलमा में एक थे कि जिनकी बात गैर मुस्लिम भी सुनते थे, हुकूमत वक्त भी सुनती थी, मीडिया भी सुनता था और मुसलमान भी सुनते थे। वरना ऐसे कम लोग होंगे, या तो मुसलमानों को लीडर होकर रह जाते हैं या पोजीशन को खुश कर लेते हैं, हुकूमत को खुश कर लेते हैं, लेकिन दोनों में मकबूल कम लोग मिलते हैं। कबल सादिक साहब की शख्सियत में ये पहलू था, बहुत अहम पहलू था। और ज़िंदगी में मैंने कभी, तकरीबन 86 से तो मुझे याद है उनका साथ, कभी मैंने उनको गुस्सा आते नहीं देखा, कभी वक्त पर न पहुंचते नहीं देखा। इतने वक्त के पाबंद शायद दूसरा कोई आलिम हो कि जो हर मीटिंग में बिल्कुल वक्त से 1 मिनट पहले पहुंचते थे और हर मैदान में उनकी बात से कोई इख्तिलाफ करे तो भी वो उसको खुशी कबूल करते थे। बाज़ मशवरों में उनके पर्सनल बोर्ड में उनकी बात से उनसे जवाब तलबी की गई। उन्होंने कहा कि भाई मेरी ज़ाती राय थी, अगर बोर्ड की ये राय नहीं है तो मैं आइंदा ऐसी बात नहीं कहूँगा। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि देखिए कितनी नुमाया शख्सियत थी, कितनी रोशन नजरियात के हामिल थे मौलाना कल्बे सादिक। जब जब अपनी बात रखते थे पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे यकीन वसूख के साथ, और अगर कहीं उनके नजरियात से किसी को कोई इख्तिलाफ होता था तो जाहिर है उसको भी बड़ी खुशउस्लूबी से तस्लीम किया करते थे। कुछ और लोग ही ना मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, देखिए बहुत अहम मंजरनामा यहाँ पर है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि बेहद इस वक्त सभी ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, लखनऊ बेहद हसास माना जाता रहा है और ख़ुद आपने भी इस तरह की कई रिपोर्ट कवर की हैं, जब कई ऐसे मौके आए जब वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा हसास हो गया, उस मौके पर मौलाना ने किस तरह से दानिशमंदी का सबूत अदा किया, एक पुल की तरह से काम किया है। यानी जो इत्तेहाद था उसको हमेशा फ़रोग़ दिया, और वक्तन फ़वक्तन आपके साथ भी उनकी जो बातचीत होती रही है उसमें भी वो यही बात कहते रहे कि इत्तेहाद, कौमी यकजहती ही किसी भी कौम की तरक्की की ज़ामिन है। देखिए बहुत अहम सवाल आपका इस हवाले से है कि लखनऊ बहुत हसास शहर है, शहर आज़ादारी है, और यहाँ पर जो शिया और सुन्नियों के तजादात रहे हैं वो भी कम नहीं रहे हैं। लेकिन मौलाना की शख्सियत के ताल्लुक से ये बात बड़े यकीन से, बड़े वसूख से की जा सकती है कि जब जब मौलाना ने पेशरफ्त की, जब जब कोई कदम उठाया तो उन्होंने बैनुल इत्तेहाद को पेश नज़र रखा, उन्होंने शिया सुन्नी इत्तेहाद पर काम किया, उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के इत्तेहाद पर काम किया। बहुत अहम लोग मेरे साथ हैं, पूछना चाहता हूँ फरज साहब, आप भी दरगाहों से जुड़े रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना ने जब जब कोई कदम उठाया है उसमें इत्तेहाद नुमाया रहा है। जी बेशक, हज़रत मौलाना कल्बे सादिक साहब का अमूमन ये अमल रहा है कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है, इत्तेहाद का काम किया है, लोगों में नफसानियत को ख़त्म करने का काम किया है। मेराज साहब, आपका भी बहुत ताल्लुक़ रहा, आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कि मौलाना ने तहरीकात में भी शामिल हुए, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? बेशक एक जो खला पैदा हो गया मौलाना हज़रत कल्बे सादिक साहब के जाने के बाद से, मेरे ख्याल में उसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। और हमेशा उन्होंने इत्तेहाद की बात करी, चाहे वो शिया सुन्नी इत्तेहाद हो, चाहे हिंदू मुसलमान इत्तेहाद हो। जहाँ इत्तेहाद की बात हुई वहाँ डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत हमेशा मौजूद रही है। जहाँ इत्तेहाद की बात थी वहाँ पर कल्बे सादिक साहब मौजूद थे। और देखिए ये एक पूरी तहरीकात हैं, एक शख्सियत के साथ अगर कोई तहरीकात वाबस्ता हो जाती हैं तो वो शख्सियत खुद एक तहरीक बन जाया करती है। तो मौलाना कल्बे सादिक पहले तहरीकात से वाबस्ता थे, बाद में उनकी शख्सियत खुद एक तहरीक बन गई, और आप देख रही हैं कि हर कौम, हर मज़हब, हर तबके, हर नज़रियत के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उन्होंने जिस तरह से तालीम के मैदान में कारहाय नुमाया अंजाम दिए, और ख़ासतौर से बच्चियों की तालीम की हमेशा वो बात करते थे। बहुत सारी उनकी बाइट्स हमें याद है, जब भी उनसे बातचीत की जाती थी तो वो हमेशा कहते थे कि अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाइए। और आज लखनऊ में जो तालीम गाह है जहाँ पर सब मौजूद हैं, इस बात की गवाह है कि उन्होंने जो एक पौधा लगाया था तालीम का, वो आज तनावर दरख्त बन चुका है। देखिए ही ना, सिर्फ एक इदारा नहीं,
एक इंस्टीट्यूशन नहीं, एक दर्जगाह नहीं, बल्कि उन्होंने मुतअद्दिद इदारे कायम किए। उन्होंने प्राइमरी स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक कायम किए, मेडिकल कॉलेज कायम किए और दूसरे ऐसे तकनीकी इदारे कायम किए जिससे कौम और मिल्लत के लोगों को फ़ायदा पहुँच सके, जिससे हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँच सके। तो देखिए, जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, बिलखुसूस निसाई तालीम का ताल्लुक़ है, तो उन्होंने उस बाब में बहुत अहम पेशरफ्त की और वो इस हवाले से भी बड़े नुमाया और बड़े मुनफरिद नज़र आते हैं। और जाहिर है कि ये खिदमात का सिलसिला उनकी तमाम ज़िंदगी जारी रहा। 81 साल के हयात में उन्होंने शायद कोई दिन भी ऐसा हो जब आराम किया हो, क्योंकि उनके पेश नज़र मिल्लत के मसाइल थे और ऐसे मसाइल थे जिनको हल करना वो अपनी फ़ौक़ियत में शामिल करते थे। और उनके पेश नज़र जो इस्लाम के मुफक्किर होने के नाते जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए वो हमेशा कोशिश रहे। नासिर साहब बहुत अहम शख्सियत थी, उर्दू के हवाले से, तालीम निस्वा के हवाले से बहुत काम किया। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब ने हमेशा उर्दू तालीम को और उर्दू लखनऊ की अदब और तहजीब को फ़रोग़ दिया है। और कहीं पर भी अगर हम लोग उर्दू की बात करते थे, हज़रत मौलाना साथ हम लोग रहते थे। और एक वाक़या मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में केस था उर्दू सेकंड लैंग्वेज का और बहुत सर्दी पड़ रही थी, तो हम लोगों को मौलाना हम लोग तारीख़ पर नहीं जा पाएंगे, तो हज़रत मौलाना ने जहाज़ का टिकट हम लोगों को दिया था कि जाइए और मुकदमा लड़िए और इंशाल्लाह जीतेंगे। और उनकी दुआओं से हम लोग सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की दस्तूरी बेंच ने इत्तेफाक राय से उर्दू सेकंड लैंग्वेज बनाया। इस लिहाज से हम लोग मौलाना को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। उर्दू वाले बहुत गमगीन हैं कि उर्दू का एक पिलर जो लखनऊ की तहजीब के अलमबरदार थे वो नहीं रहे हमारे बीच। उर्दू का एक पिलर, तहजीब का अलमबरदार, एक ऐसा सुतून, तारिक मौलाना की जिसने हम तदफीन के बारे में भी जानना चाहेंगे। अभी क्या हो गई है या वहाँ पर क्या कुछ अभी? देखिए, मौलाना का जस्द खाकी यहाँ रखा हुआ है इमाम बाड़ा गुफरान माब में। अब ये मंजर आपको दिखवाता हूँ मैं, और अभी चंद ही लम्हात में मौलाना को सुपुर्द खाक किया जाना है उनके जस्द खाकी को। आप देख सकते हैं ये मंजर कि हज़ारों लोग यहाँ पर उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और चंद ही लम्हों में अभी यहाँ पर मजलिस बरपा है और मजलिस के बाद मौलाना के जस्द खाकी को कब्र मुबारक में उतार दिया जाएगा। और वो एक रोशनी का मीनारा जिसने शहादत कबूल की, और वो एक ऐसा सुतून जो कई हवालों से बड़ा मोतबर, बड़ा मुस्तनद तस्वुर किया जाता रहा था, बिल आखिर आज अपने इख्तिताम को पहुंचा है। ज़िंदगी का ये सफ़र आखिरी मराहिल में इख्तिताम को पहुंचते हुए गुफरान माब तक जस्द खाकी की शक्ल में पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों अक़ीदतमंद, उनके हज़ारों चाहने वाले आज इमाम बाड़ा गुफरान माब में मौजूद हैं। मौलाना सैयद कल्ब सादिक को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए, उन्हें उनकी खिदमत का एतराफ़ करने के लिए। आप देखिए, यही कुछ मंजरनामा 3 घंटे पहले यूनिटी कॉलेज में था, जब ख़वातीन और हज़रात की खासी कसीर तादाद वहाँ तक पहुँची थी। और फिर वहाँ से जस्द खाकी को शाहरा से होता हुआ, छोटे इमाम बाड़े, बड़े इमाम बाड़े, घंटाघर से होता हुआ यहाँ तक लाया। और देखिए, मैं आपको बता जी तारिक, बिल्कुल आज पूरा लखनऊ सोगवार दिखाई दे रहा है और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने नाज़रीन तक पल पल का जो नज़ारा है वो भी पहुँचा रहे हैं। और इस वक्त आइए देखते हैं कि कुछ अहम लोगों ने क्या कुछ कहा है। जैसे कि जुनूबी हिंद के शहर बेंगलुरु में गहरे रंजो अलम का इजहार किया जा रहा है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मीर कायम अब्बास ने कहा कि मरहूम मौलाना कल्ब सादिक ने अपनी पूरी ज़िंदगी तालीम के फ़रोग़ और इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए वक्फ कर दी थी। JDS के सीनियर लीडर रोशन अब्बास ने कहा कि मौलाना कल्ब सादिक की इल्मी और दीनी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मौलाना का इंतकाल ये हमारे सारे मिल्लत और तमाम कौम को बहुत महंगा हुआ है, क्योंकि एक कहावत है, आलिम की मौत आलम की मौत है। मौलाना इनके खिदमात बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि तालीमी मैदान में हो या गरीबों को, बेवाओं को स्कॉलरशिप के सिलसिले में। क्योंकि इन्होंने पहले 1984 में पहले तौहीदुल मुस्लिमीन बोल के एक ट्रस्ट बनवाया। उस ट्रस्ट से, यानी एजुकेशनल ट्रस्ट, और गरीबों को मदद करने के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेवाओं को मदद करने के लिए इनके बहुत से ये हैं, जैसे कि यूनिटी स्कूल है, यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट है, और TMT विडोज पेंशन ट्रस्ट है। ऐसे बहुत से तालीमी मैदान में बहुत काम किए हैं। स्पेशली ये ऑल इंडिया मिली काउंसिल में भी मेंबर रहे और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। इनके खिदमत ज़्यादा हैं, समाजी, सियासी, तालीमी, हर चीज़ में भी इनका, हर मैदान में भी बहुत अच्छा रोल अदा किया है। स्पेशली ये इत्तेहाद मुस्लिमीन, यानी सिर्फ एक मसलक, यानी एक कौम के
आलिम नहीं है, इनका दिल ऐसा था कि सारे मुसलमानों को, सारे कौम का जो मुस्तकबिल का ये था वो उनके सीने में दिल था। मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब एक बड़ी अजीम शख्सियत, इज्तिमाई शख्सियत, बल्कि यूँ कहा जाए ख़ुद ये एक उम्मत थे। तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से, सियासी एतबार से, अज़ाई एतबार से, खिताबत के एतबार से मुनासिब फ़र्द थे। और सबसे बड़ा इम्तियाज़ ये था कि इनके पास दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ये ज़ोर दिया करते थे। एक एजुकेशन के सिलसिले में कि हर बच्चा कौम व मिल्लत का पढ़ा लिखा होना चाहिए, आगे बढ़ के मैदान में, इल्मी मैदान में हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा जो है वो इत्तेहाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि जब हम उम्मत वाहिदा हैं, एक बाबरकत इस्लामी परचम के तले हैं, कुरान एक है, कि खाने काबा एक है, अल्लाह एक है और हमारा रसूल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो इस सूरत में जो है तो हम क्यों आपस में बिटे हुए हैं। इत्तेहाद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा इन्होंने जोर दिया है। चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक कमर। तारिक, आपके पास एक बार फिर से आना चाहेंगे और आपसे जिस तरह से लगातार अपने तमाम नाज़रीन तक हम ये मंजर पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर यह भी हमने देखा था लगातार कि तमाम जो बड़ी सियासी शख्सियात हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हों, जो भी शख्सियात रहती थी वो हमेशा मौलाना के पास ज़रूर जाती थी, उनसे दुआ लेती थी। ऐसी शख्सियात बहुत ही कम हमें तारीख़ में दिखाई देती हैं जो कि सियासत से बिल्कुल परे हैं, जिनका दस्ते शफ़क़त बहुत ज़रूरी है। देखिए, मौलाना का कोई मुतालबा ज़ाती नहीं था। उनके ताल्लुकात, उनके रवाबित तमाम सियासी रहनुमाओं से थे, तमाम सियासी पार्टियों से थे, लेकिन उनका ज़ाती कभी कोई मुतालबा रहा ही नहीं। जब जब उन्होंने कोई आवाज़ उठाई तो मिल्लत के लिए आवाज़ उठाई, कौमों मिल्लत के लिए और कौम मुल्क के लिए आवाज़ उठाई। और देखिए, यही उनकी शख्सियत का एक रोशन पहलू भी था कि वो अपने लिए कभी जिए नहीं, अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर दी थी कौम मिल्लत के नाम, उन तमाम मजलूमीन के नाम जो इंसाफ चाहते थे। बहुत अहम शख्सियत की आज रहलत है। जाहिर है कि पूरा लखनऊ सोगवार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इस वक्त पूरा लखनऊ सोगवार है और तमाम मदारिस के तुल्लाब, तमाम मदारिस के असातिज़ा, खाली लखनऊ के नहीं, लखनऊ के बाहर के भी और बैरून मुल्क यानी इंडिया के बाहर भी सब सोगवार हैं, क्योंकि डॉक्टर कल्बे सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत थे जो इल्म पे रोशनी डाल रहे थे, इल्म की तरफ तवज्जो दे रहे थे लोगों को, और उन्होंने यूनिटी कॉलेज को बहुत आगे बढ़ाया और टीएमटी के ज़रिए उन्होंने लोगों की मदद की। जो ग़ुरबा पढ़ा नहीं सकते थे अपने बच्चों को, उन्होंने उनको पढ़ाया। और इसी तरीके से इरा मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने खिदमत की और गरीबों को, बेवाओं को और मरीज़ों को उन्होंने दवा फराम की। ये बहुत बड़ी उनकी शख्सियत। देखा आपने कि मुख्तलिफ शोबा हयात के लोग जो हैं वो अपने अपने तौर पर इजहार ताज़ियत कर रहे हैं, मौलाना कल्बे सादिक की खिदमत को याद कर रहे हैं। जाहिर है कि जब कोई ऐसी अहम शख्सियत हमारे माबेन नहीं रहती है तो ये सिर्फ हमारा ही नहीं, सिर्फ एक सोसाइटी, एक तबके का ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान होता है, पूरी इंसानियत का नुकसान होता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। बहुत अहम रोशन मीनारा जो था वो आज शहीद हुआ है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे? बहरहाल ये एक गम का मौका है, क्योंकि एक अजीम शख्सियत थी। एक सदियों में ऐसी शख्सियत पैदा होती है जो कि हर लिहाज से सबके लिए मुफीद थे, इंसानियत के लिए मुफीद थे, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं। और उनका पैगाम भी इंसानियत को जोड़ना था। शिया सुन्नी इत्तेहाद हो या हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो, सबके ऊपर उन्होंने हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी जोर दिया है और यही कहा कि सब लोग एक रहो, और अगर जंग करनी है तो जहालत से जंग करो, गुर्बत से जंग करो, बेरोज़गारी से जंग करो। कितना रोशन नज़रिया था, कितने वाज़ेह अहकामात थे कि अगर तुमको जंग ही करनी है तो अंधेरों के खिलाफ लड़ो, जहालत के खिलाफ लड़ो, गुर्बत के खिलाफ लड़ो। तारिक, क्या कुछ इत्तला मिल पा रही है? अभी कितनी और देर लगेगी वहाँ पर?
देखिए ये मंज़र आप तक पहुंच रहा है, नाज़रीन तक पहुंच रहा है। ये आखिरी मजलिस है उनके सिलसिले की। इस मजलिस के अख्ताम के बाद मौलाना के जद्द खाकी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, कब्र मुबारक में उतार दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि लोगों ने दुआओं के लिए हाथ उठा लिए हैं और अब तदफीन का ये अमल शुरू हो चुका है। ज़ाहिर है कि हज़ारों लोग हुसैनिया हज़रत दिलदार अली गुफरान माब इमाम बाड़े में मौजूद हैं और ये उस अजीम शख्सियत को खिराज अक़ीदत है जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी कौम व मिल्लत के नाम, मुल्क के नाम, मज़लूमियत के नाम, इंसानियत के नाम वक्फ़ कर दी थी। ज़ाहिर है मौलाना कल्ब सादिक की शख्सियत किसी एक तबक़े, एक मज़हब, एक नज़रिए, एक मसलक के लिए नहीं थी, बल्कि जहाँ जहाँ भी लोग जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे वो उनके साथ शरीक होते थे। जहाँ जहाँ भी जुल्म के ख़िलाफ़ तहरीकात चलाई जाती थी वहाँ पर कल्ब सादिक नज़र आते थे, उनके अफ़कार नज़र आते थे, अपने ख़यालात के ज़रिए पहुँचते थे, अपने कदमों के ज़रिए पहुँचते थे। महसूस होता था कि एक इस्लाम का मुबल्लिग़, एक मुफस्सिर, एक मुफक्किर। तारिक, आप के कैमरामैन से हम चाहेंगे कि इस वक्त का जो जज्बाती मंजर है वो हमारे नाजरीन तक बराह रास्त पहुँचाएँ, क्योंकि पूरी दुनिया में मौलाना के चाहने वाले मौजूद हैं। वो हमारे इस चैनल के ज़रिए ये मंजर बराह रास्त देख रहे हैं। अनिल साहब, दरख्वास्त की जा रही है कि वो मनाजिर दिखा दें आप कि जिसको देखने के लिए हमारे न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए पूरी दुनिया में लोग टीवी स्क्रीन के सामने मौजूद हैं और देखना चाहते हैं कि मौलाना के ज़िंदगी के आखिरी सफ़र की ये रसूमात किस अंदाज से अदा की जा रही हैं और किस अंदाज से लोग यहाँ पर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो मंजरनामा है गुफरान माब का, जहाँ पर हज़ारों लोग मौजूद हैं और मौलाना के जद्द खाकी को इमाम बारगाह के अंदर जो कब्र मुबारक है उसमें उतारा जा रहा है। ये आखिरी सफ़र है उस अजीम शख्सियत का, उस अजीम हस्ती का जिसने तमाम ज़िंदगी इंसानियत की फलाह के लिए काम किया, गरीबों की परवरिश की, यतीमों की किफ़ालत की, यतीम खाने खोले, इदारे खोले, स्कूल बनाए, मजहबी इदारे और मदारिस में बुनियादी किरदार अदा किया। तो देखिए एक शख्सियत जो कि सदियों में शख्सियत बनती है, उसका जीता जागता नमूना थे मोहतरम डॉक्टर कल्ब सादिक साहब, जिनकी रहलत से आज लखनऊ के तमाम लोगों आप दीदा नज़र आते हैं, तमाम आंखें नम नज़र आती हैं, हर लब पर फुगा है और हर शख्स को ये अफसोस है कि एक अबकरी शख्सियत, एक नहायत अजीम आज़ादारी का अलंबरदार, हमारी तहजीब का अलंबरदार, अदब का अलंबरदार, एक अदब और सकाफ़त का रहनुमा, एक ऐसा पसंदीदा शख्स जिसको हर तबके, हर मसलक के लोग पसंद करते थे, हमारे दरमियान से उठकर ज़िंदगी के उस सफ़र पर निकल चुका है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। ये वो मंजरनामा है जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए कि मोहतरम मौलाना कल्ब सादिक के जद्द खाकी को कब्र मुबारक में उतार दिया गया है और अब लोग फातह अखवानी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए इमाम बाड़ा गुफरान माब का ये मंज़र कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग, और मैं बता दूँ आपको कि देखिए बहुत दिनों के बाद लखनऊ ने ये मंज़र देखा है कि जब तमाम मसालिक के लोगों ने नमाज जनाजा में शरीक होकर अपने अजीज़, अपने महबूब रहनुमा को आखिरी सफ़र पर रवाना किया है, अपनी मग़फ़िरत की दुआओं के साथ, नेक नियती और खुलूस के साथ, उस जज्बे और एहतराम के साथ जो इस बड़े आलिम दीन का हक़ होता है। और इस हक़ की अदायगी में तमाम मसालिक के, तमाम मकातिब व नज़रियात के लोग बराबर के शरीक रहे हैं। हिना जी तारिक, तो ये लम्हा वाकई सबके लिए बेहद जज्बाती है और बराह रास्त हमारे तमाम न्यूज़ 18 उर्दू के नाजरीन जो हैं वो ये मंज़र देख रहे हैं। लखनऊ से बराह रास्त ये तस्वीर हमारे साथी तारिक कमर पहुँचा रहे हैं और देख सकते हैं इस वक्त हर आँख नम है, हर हाथ दुआ के लिए उठा हुआ है। बेहद जज्बाती मंज़र, साथ ही साथ पूरी दुनिया की अगर बात करें तो मौलाना कल्ब सादिक के तमाम तर चाहने वाले थे और लखनऊ की तो क्या बात करें। लखनऊ ने आज एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो तमाम सब जगह याद रखी जाएंगी। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं लखनऊ के इमाम बाड़ा गुफरान माब से, जहां सोगवारों की बड़ी तादाद मौजूद है। और तारिक, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त वहाँ पर जाहिर सी बात है सोगवारी का मंजर जो है वो देखा जा रहा है
بہت ساری اہم شخصیات بھی خود وہاں مولانا کے اس میں شریک ہونے کے لیے موجود رہیں. دیکھیے میں بتا دوں آپ کو کہ مولانا کی شخصیت سے جو لوگ متاثر تھے وہ کسی ایک خاص مسلک کے لوگ نہیں تھے. ظاہر ہے کہ تمام طبقوں کے لوگوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا, اور میں نے صبح سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس انداز سے ایک ہجوم ہے جو چلا آ رہا ہے, ہر چند کے بار بار یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے کہ کورونا کے پیش نظر لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, ایک فاصلہ برقرار رکھیں, لیکن عقیدت کا سفر ہے جو کہ رکنے کو نہیں کہتا ہے. یونٹی کالج سے غفران ماپ کے امام باڑے تک کا سفر نہایت ہی روشن سفر تھا, لیکن میں بتا دوں آپ کو کہ عقیدتوں کا ایک ایسا ہجوم ہے جس کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. بہت دنوں کے بعد لکھنؤ نے یہ منظر دیکھا ہے جب کسی ایک شخص کی رحلت پر تمام طبقوں کے تمام مذاہب کے لوگ امٹ پڑے ہوں, چاہے وہ یونٹی کالج ہو یا امام باڑہ غفران ماب ہو. میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف نظریات, مختلف خیالات کے لوگ یہاں پر ہیں. آپ سے بات کریں گے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے تمام زندگی خدمت کی عوام کی, تمام زندگی خدمت کی ملت کی, کیا کچھ کہیں گے؟ ان کی وجہ سے شکشا میں بہت زیادہ, جو بچوں کو تعلیم میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. انہی نے اس مہم کو اپنی قربانی سمجھے دی ہے شکشا کے چھیتر میں. ان سے بڑھ کے اس کام میں کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ وہ بول تک نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے. قلب صادق صاحب طارق آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہیں گے. اور وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی مولانا قلب صادق کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے, وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں. مولانا قلب صادق کے انتقال پر پی ایم نریندر مودی نے تعزیت کا اظہار کیا ہے. پی ایم نے لکھا کہ قلب صادق کے انتقال پر کافی دکھ ہوا. جس طرح سے لگاتار ہم طارق سے بات کر رہے ہیں کہ مولانا کی شخصیت سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کے لیے کام کیا, یہ پی ایم مودی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے. تعزیت کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے مولانا قلب صادق کے انتقال پر. ہر طرف سے مولانا قلب صادق کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے, اور لگاتار ہم آپ کو براہ راست تصاویر بھی دکھا رہے ہیں.